17, 18 یہ 17, 18, 19 ان میں سے ملتے جلتے دو سوال ہیں، وہ کون سے؟ اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ان کو گھر سے کام دینے کے لیے تھوڑی مشکل ہو گئی۔ ایک تو دانش والا کوشچن ہے، نہیں اس میں بھی وہ ریسیو کر لیے وہ، اور ڈیفالکیشن کس میں ہے؟ چلو ابھی ہم یہ کرتے ہیں نا، اور ان کو دانش والا کوشچن دیتے ہیں، وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ویسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹ مجھے کنفرم کیجئے گا میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ کوئی کنفرم کر دے کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سمرا میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر۔ اوکے تھینک یو، کلوز کرو۔ اچھا جی، کسی کا کوئی کوشچن؟ جو کل کوشچن میں نے دیا تھا اس میں کوئی ایشو ہو، کوئی پرابلم ہو، سالو کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، ہو جانا چاہیے تھا۔ جی عاقب صاحب۔ سر یہ تھا ایڈجسٹمنٹ نمبر 1 کا، سر جی وہ پوچھنا تھا سر، اس نے سیلز کی ہیں پروفٹ مارجن 1/3 آف دیئر سیلنگ پرائز ایٹ اے پروفٹ مارجن آف 50% آف کاسٹ آف سیل۔ سر اس کا جب میں نے کیا تھا سر، وہ سوال میں ڈفرینس آتا، جب پیچھے جا کے دیکھا اس نے کسی اور طرح سے، یعنی دو سے سولوشن نکالنے، اس کا بس تھوڑا سا ادھر سے پوچھنا جو کنفیوژن ہے۔ بھائی سولوشن تو نہیں میں نکالوں گا، میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ کرنا کس طرح سے ہے، نکالو جی۔ سر وہ کوسچن 15 ہے۔ 15 15 کی ایڈجسٹمنٹ نمبر 1، آصف سیل گوڈس ایٹ اے پروفٹ مارجن آف 1/3 آف دیئر سیلنگ پرائس۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیلنگ پرائس اس کی 100 ہے تو اس کی جو پروفٹ ہے وہ 33.33% ہے، ٹھیک ہے؟ دیٹ از ایٹ اے پروفٹ مارجن آف 50% آف کاسٹ آف سیل، یا اس طرح کہہ لیں یا اس طرح کہہ لیں۔ اگر کاسٹ آف سیل 100 ہے تو پھر اس کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ اس کا 50% ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح سے دیکھ لیں، اس طرح سے دیکھ لیں، دونوں طرح سے ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طرح قیمت بنے گی، سیلنگ پرائس 150 جو بھی آپ کو دیا ہوا ہے، اگر سیلنگ پرائس دی ہوئی ہے تو یہ سیلنگ پرائس ڈیوائڈڈ بائی 150 ملٹیپلائڈ بائی آپ کریں گے 50 تو کاسٹ نکل آئے گی۔ ہاں جی، یہ 150 ہے نا، ان دونوں کو جمع کرنا پڑے گا نا، تو ملٹیپلائڈ بائی 100 کریں گے تو کاسٹ نکل آئے گی، 50 کریں گے تو پروفٹ نکل آئے گا۔ اور اگر آپ نے سیلنگ پرائس کے تھرو جانا ہے تو پھر اس طرح کر لیں، سیلنگ پرائس ڈیوائڈڈ بائی 100 ملٹیپلائڈ بائی 66.67 تو بھی وہی آنسر آئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگا، ڈن سر، میں ٹھیک ہے سر، ڈن، تھینک یو سر۔ چلیں جی۔ اچھا جی، آج ہم لوگوں نے اٹیمپٹ کرنا ہے کویشچن جو کل میں نے چونکہ اس میں کمپلیکیشن تھی جو کہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ بہرحال، عمر از اے گروسر who had not kept a full set of books. The following was a summary of his bank statement for the year ended 31st December. یہ بینک اسٹیٹمنٹ کی سمری دی ہوئی ہے، آگے چلیں جی۔ ٹریڈنگ ریسیٹس consisted partly of cash, partly of checks.
जो पैसे आते हैं वो कुछ चेक में आते हैं, कुछ कैश में आते हैं. ड्यूरिंग द ईयर उमर हैड पेड आउट हिज कैश टेकिंग्स, पेड आउट ऑफ हिज कैश टेकिंग वेजेस अमाउंट, ये कैश पेमेंट्स दी हुई हैं सारी की सारी. ठीक है, तो इनको हम 1000 में राउंड कर लेंगे. ठीक है, ये उसने दी हुई हैं सारी पेमेंट्स. ओके, ये देख लेंगे. चेक्स ड्रॉन पेएबल टू ट्रेड पेएबल बट नॉट, ये अनप्रेजेंटेड चेक हैं जो हमने लोगों को दिए हुए हैं. पहले हमने क्वेश्चन में कल वाले क्वेश्चन में मैंने अनकलेक्टेड वाले चेक डील किए थे. वो अनकलेक्टेड चेक तो नहीं थे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट वाज लाइक अनकलेक्टेड चेक ना, कि हमने कलेक्शन कर ली हुई थी, बैंक में एंट्री नहीं हुई थी, तो हमने ओपनिंग में से उन्हें जो था उनको हमने, क्योंकि वो उसने में बैंक रिसीट दी हुई थी, तो ड्यूरिंग द ईयर तो उसमें वो ओपनिंग शामिल थे, वो निकाल दिए थे, क्लोजिंग हमने ऐड कर दिए थे. तो ये बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक हैं. ये ओपनिंग है 280 और ये क्लोजिंग, ये क्या हुआ, और ये क्लोजिंग है इसके 320 के. इनको हैंडल करेंगे हम. अ डिसऑनर चेक वर रिप्रेजेंटेड एंड ऑनर ड्यूरिंग द ईयर, एक चेक डिसऑनर हुआ वो ड्यूरिंग द ईयर प्रेजेंट भी हो गया. अच्छा, देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट है. द लोन इंटरेस्ट वाज पेड टू ब्रो हु हैड लेंट उमर 4000. ठीक है, ये उसने किसी से लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया हुआ है सम ईयर्स अगो. इट मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन. द इंटरेस्ट वाज ड्यूली पेड हाफ ईयरली ऑन 31st. ठीक है. डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर्स अमाउंटेड टू 480,000. ये जो डिस्काउंट अलाउड का वर्ड है, इससे धोखा नहीं खा जाना. ये डिस्काउंट अलाउड आमतौर पर हम फौरन जल्दी जल्दी में पेपर में बैठे हुए लिख देते हैं कि ये डिस्काउंट अलाउड है. एक्चुअली ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. क्यों कि अलाउड बाय सप्लायर्स, हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, 480 का है. एंड दो कस्टमर वर, ये उसने कहा कि जी इतने लोगों से हमने पैसे लेने हैं. अच्छा, ये उसने उस्तादी ये की है कि यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ उसने रिसीवेबल की फिगर दे दी है. तो बच्चा यहाँ से भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये ठीक है, दोज अलाउड टू कस्टमर, सॉरी ये डिस्काउंट अलाउड की है, अलाउड टू कस्टमर है. ठीक है ना, तो ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. तो ये इस तरह से उसने. अच्छा जी, नीचे उसने क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं. आगे चलें. बस ठीक है जी, आगे इसका सोल्यूशन शुरू हो गया. ये छोटा सा डाटा था, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है. चलें जी, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जो ओपनिंग है मेरे पास मैं वो ओपनिंग उठाऊंगा. ठीक है, चलें लिखते जाएंगे जी. मैं बुक से मैंने टी अकाउंट इधर ड्रॉ किए हुए हैं, मैं यहाँ पर लिखता जाऊंगा. सबसे पहला अकाउंट है क्या कहना चाहिए इसको, कॉस्ट ऑफ सेल. ये हमारे पास है ये इसका इतनी रहेगी थिकनेस इसकी. ओके ओके ओके. ये ओपनिंग इन्वेंट्री है जी, कितनी है 4500. और मैं क्लोजिंग भी साथ साथ लिखने लगा हूँ, क्योंकि एक ही जगह दिए हुए हैं पेपर में. आप भी ऐसे किया करें, क्योंकि एक चीज को आप एक लाइन को पढ़ रहे हैं तो जहां उसके इफेक्ट जाने. कितना 5800. चलें जी, नेक्स्ट अकाउंट किस चीज का है, रिसीवेबल का अकाउंट है. कितना है जी ओपनिंग बैलेंस 2800. क्लोजिंग, हाँ साथ कुछ लाइनें लिखी, लाइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, निकालें जी क्या लिखा हुआ है. वो लिखता है इंक्लूडिंग अ बैड डेट ऑफ 200,000 टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ. ये देखें, एंट्री भी करनी है और क्लोजिंग में से भी माइनस करना है, दोनों काम कर देते हैं. क्लोजिंग कर देते हैं इसका 3000. चलें जी, क्लोजिंग कर दिया हमने 3000 और साथ हमने एंट्री कर दी किसकी, बैड डेट्स की. ये आ गई 200 और बैड डेट्स को हमने उधर एक्सपेंस में भी लिखना है. एंट्री की बैड डेट्स टू एक्सपेंस. ओके आगे चलेंगे. हमने क्या किया, एंट्री कर दी बैड डेट टू रिसीवेबल
اور ساتھ کلوزنگ میں چونکہ وہ شامل تھے تو جب وہ بیڈ ڈیٹ ہو گئے تو وہ کلوزنگ کی لسٹ سے نکال دیں گے. آگے چلیں جی. ایکروڈ جنرل ایکسپینسز. ٹھیک ہے, جنرل ایکسپینسز کا اکاؤنٹ ایک بنا دیتے ہیں یہاں پر. اوپننگ بیلنس کتنا ہے اور کلوزنگ 190. نیکسٹ. اچھا جی, یہ ریٹس ہیں, پری پیڈ ہیں, تو میں ریٹس کا اکاؤنٹ کھولتا ہوں. اوپننگ بیلنس کتنا ہے اور کلوزنگ 50. نیکسٹ. فکسچرز. اچھا جی, فکسچر کی لائن نکالیں جی. فکسچر کے ساتھ بھی کچھ لکھا ہوا ہے. فکسچر انکلوڈنگ دوز پرچیز ڈیورنگ دا ایئر ویلیوڈ ایٹ. ٹھیک ہے, یہ اوپننگ بیلنس ہے اور یہ کلوزنگ بیلنس ہے. لکھتے ہیں جی, وہ جو ڈیورنگ دا ایئر پرچیز ہوئی ہیں اس کی انٹری کریں گے جب آئے گی. یہاں پر لکھا اوپننگ بیلنس کتنا ہے اور کلوزنگ 2550. جی, اب وہ ڈیورنگ دا ایئر والی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے, بیڈ ڈیٹ کی تو وہاں اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی. یہ ڈیورنگ دا ایئر والی جب آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے. آگے چلیں. ٹریڈ پے ایبلس, یہ میں یہاں اکاؤنٹ بنانے لگا ہوں جی. اوپننگ کتنا ہے اور کلوزنگ 'اوکے. نیکسٹ جی. لائٹ اینڈ ہیٹنگ کا پے بل ہے. آگے کچھ اور اکاؤنٹ ہم نے ڈرا کیے ہیں. لائٹ اینڈ ہیٹ اوپننگ بیلنس ہے جی 80, کلوزنگ 70. نیکسٹ. چلیں جی, بیلنسز. چلیں دوبارہ کوشچن پہ. میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے وہ جو یہ والا اس کا کام کوشچن میں سے فارغ کر دیا اس پورے ڈیٹا کا. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں ہم پیچھے بینک اکاؤنٹ کے اوپر چلتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اوپننگ بیلنس. اوپننگ بیلنس ہم کوئی انٹری نہیں کرتے, یہ تو ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اس کا اوپننگ بیلنس ہے. پیمنٹ فار ٹریڈ پیبلس, یہ سمری آف بینک اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن اماؤنٹ کریڈیٹڈ بائی دا بینک کا مطلب ہے یہ ہمارے ڈپازٹس ہیں اور یہ ہمارے وڈرالز ہیں یا پیمنٹس ہیں. یہ پیسے نکلوائے ہیں, یہ جمع کرائے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لکھا ہوا ہے پیمنٹس فار ٹریڈ پیبل, یہ ڈیورنگ دا ایئر جو چیک کیش ہوئے یہ ان کا اماؤنٹ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیورنگ دا ایئر ہم نے جو چیک ایشو کیے یعنی ان پریزنٹڈ ہمارے حساب سے پیمنٹ ہے. بینک کے حساب سے ان پریزنٹڈ پیمنٹ نہیں ہوتی, ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے, ہم اپنے حساب سے اس کا بینک بیلنس نکالیں گے. تو یہ جو 30,500 ہے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی, وہ کہتا ہے چیکس ڈران پیبل ٹو ٹریڈ پیبل. ہم نے جو ٹریڈ پیبلس کو دینے کے لیے چیک ڈرا کیے, بنائے, لکھے, دیے ان کو, بٹ ناٹ پریزنٹڈ ایٹ 1 جنوری 2015. اوپننگ ڈیٹ کو اتنے ان پریزنٹڈ چیک تھے. اب وہ جو اوپننگ ڈیٹ کے ان پریزنٹڈ تھے وہ ڈیورنگ دا ایئر پریزنٹ ہوئے. جب ڈیورنگ دا ایئر پریزنٹ ہوئے تو وہ بینک پیمنٹ میں آ گئے, جبکہ ہمارے حساب سے وہ پچھلے سال پیمنٹ ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے. اگر اس دفعہ پھر اسے پیمنٹ میں رہنے دیں گے تو ڈپلیکیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, مطلب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری کیش بک نہیں ہے, یہ بینک کی بینک سٹیٹمنٹ کا اس نے ایک چھاپا لگا دیا ہمیں. تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنے حساب سے پیمنٹ نکالیں گے, نہ کہ بینک کے حساب سے پیمنٹ کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمارے حساب سے یہ پیمنٹ تو پچھلے سال ہوگی تھی, اس سال نہیں آنی, لہذا بینک والی پیمنٹ سے یہ مائنس کر دیں گے. بینک والی پیمنٹ میں یہ کلوزنگ ان پریزنٹڈ والی پیمنٹ نہیں آئی کیونکہ بینک میں وہ پیمنٹ ابھی آئی نہیں ہے, لیکن ہمارے حساب سے پیمنٹ ہو گئی ہے, لہذا یہ والی پیمنٹ ہم ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, تو چلیں جی اب دوبارہ بینک کے اوپر. کہاں ہے بینک کی وہ, یہ جو 30,500 ہے میں ادھر کرنے لگا ہوں. 30,500 میں سے
ओपनिंग अनप्रेजेंटेड चेक हमने लेस कर देने हैं, वो 200 के थे 280, और क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड चेक हमने ऐड कर देने हैं, वो कितने थे 300 के 320 के। तो बेसिकली क्या हुआ, एक्चुअल हमारे हिसाब से पेमेंट ये होगी कितनी 30,540। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है ये जो बैंक का बैलेंस है इसके अंदर भी चेंज आ जाएगी इस वजह से। ठीक है, अंडरस्टैंड कर गए बात को, क्योंकि मैंने जब पेएबल की लिस्ट बनाई है अपने रिकॉर्ड से, तो उस लिस्ट के अंदर मैं जिन लोगों को मैं चेक दे चुका हूं मैं उन्हें पेएबल नहीं लेता, तो वहां तो मैंने उन्हें क्रेडिटर से निकाल दिया, तो यहां उनकी पेमेंट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो करूंगा मैंने, इसलिए उसे पेमेंट में डाल दिया। जिन लोगों को मैं पिछले साल पेमेंट कर चुका हूं वो मेरे ओपनिंग पेएबल में नहीं आए, तो लिहाजा मैं जब ओपनिंग पेएबल में नहीं ले रहा तो उन्हें पेमेंट पिछले साल हो गई है, लिहाजा इस पेमेंट से मैं ये पेमेंट निकाल दूंगा। क्लियर हो जाना चाहिए दोनों तरह से अंडरस्टैंडिंग। कितने आई जी ये 30,540। तो हम यहाँ अब एंट्री इसकी करते हैं, एंट्री क्या करेंगे, बैंक क्रेडिट और पेएबल डेबिट 30,540, ये आ गया जी पेएबल। बैंक, क्यों जी बात समझे हैं ये, हैंड रेज करें शाबाश, हैंड रेज करें शाबाश, बात समझ आ गई है ये सबको। चलें जी, गुड हो गया, ठीक है क्लोज करें, म्यूट करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लिखता है रेंट एंड रेट्स, इतने हमने पे किए हैं, लिहाजा इसको रेंट एक्सपेंस में डेबिट करके, और इधर अगर पेएबल या प्रीपेड नहीं है तो ये डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में चले जाएगा, अगर है तो फिर उसके लेजर में चला जाएगा, जो कि है। चलो जी, रेंट का अकाउंट है 475, उसमें हम क्या करेंगे, ये वाला 475 टू बैंक। ठीक है, आगे चलें जी। उसके बाद आ गया जी फिक्सचर, फिक्सचर हैं 100 के, ये फिक्सचर भी हम लिख देते हैं, 100 के फिक्सचर भी हम लिख देते हैं जी। चलें जी, फिक्सचर ये डेबिट हो गए 100 के, इसके अंदर वो कह रहा था शामिल है, ये बैंक से पेमेंट हो गई। चलें आगे चलें जी। लाइटिंग एंड हीटिंग, इसका भी शायद एक पेएबल अकाउंट बना है, लाइटिंग एंड हीटिंग टू पेएबल, अगले पेज पे बनाया हमने, यहाँ पर ये पेएबल आ जाएगा कितना 210 बैंक। ठीक है जी, चलें जी आगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस का भी अकाउंट बना हुआ है 800 का, इसे भी वहां लिखेंगे। ये रहा 800 बैंक जी। नेक्स्ट, हर सवाल में ना एक या दो ट्रिकी पॉइंट होते हैं, बाकी तो रूटीन की चीजें होती हैं, तो हर सवाल में से जो चीज सीखने वाली है वो अगर आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह पेपर वाला सवाल भी अटेम्प्ट हो जाएगा। लोन का इंटरेस्ट है 120, हमने पे किया, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट लिखी हुई थी, पहले लोन इंटरेस्ट अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाना है, ये आ गया जी लोन इंटरेस्ट अकाउंट 120। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो देख लें, उस जो लिखा हुआ है उसमें से इसका कोई प्रीपेड या पेएबल तो नहीं लिख रहा। कहता है लोन इंटरेस्ट वाज पेड टू बोरो हु हैड लेंट उमर 400,000 सम इयर्स अगो एट 3% पर एनम। ओके, इसका मतलब है इसका सालाना 4,000 के ऊपर 3% बनेगा 120। The interest was duly paid half yearly on 31st March and 30th September. Good. तो 31st मार्च और 30th सितंबर को ये पे होता है 6 महीने का। इसका मतलब जब पिछला दिसंबर क्लोज हुआ था तो 3 महीने का इंटरेस्ट पेएबल था। 3 महीने का इंटरेस्ट पेएबल कितना था 30, तो वो पेएबल बुक करें।
यहाँ लिखा हमने ओपनिंग बैलेंस 30 का, ठीक है। और जब साल खत्म ये वाला हुआ तब भी 3 महीने का पेएबल था, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ तो उतना ही पेएबल है। अब ये देखें, वो बाजार ये लग रहा है कि 120 पे हो गया, लेकिन वो 120 तो पे हो गया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसमें 30 ओपनिंग था और 90 इस साल का था, और फिर इस साल का 30 पेएबल बुक किया, तो इस तरह वो टोटल 1 सारा पेड जो है वो एक्सपेंस नहीं है, उसमें से 30 ओपनिंग के अगेंस्ट है, तो पेड में से 90 एक्सपेंस है और जो पेएबल है क्लोजिंग वो 30 एक्सपेंस है, तो टोटल वो बहरहाल 120 ही बन गया। आगे चलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइंग्स होगी, ठीक है। ड्राइंग्स का अकाउंट बना देते हैं 900 का, यहां पर मैं ड्राइंग्स अकाउंट बना देता हूं। चलें, ये बैंक से चेक गए हैं, ड्राइंग अकाउंट इसलिए लहदा बना दिया कि बाद का कैश ड्राइंग निकल आती, नहीं निकलेंगी तो यही लिख देंगे। अच्छा, मैं ढूंढना नहीं शुरू कर दूंगा कैश ड्राइंग, टाइम ज़ाया होगा। कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड, कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ है, ठीक है। जब कस्टमर चेक डिसऑनर होता है तो हम एंट्री करते हैं उसकी रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो करें जी जरा ये वाली एंट्री पहले रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। कितने का था? 180 का, 180 बैंक। इसके बारे में उसने एक लाइन भी लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है वो निकालें जरा लाइन। वो लिखता है ऑल डिसऑनर्ड चेक्स वर रिप्रेजेंटेड एंड ऑनर ड्यूरिंग द ईयर, कि वो रिप्रेजेंट हुए हैं और ऑनर हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रेजेंट हुए हैं चेक, उसके अंदर जो है वो जो बैंक से पैसे निकले उसके अंदर एक चेक ये वाला भी शामिल है जो कि डिसऑनर हुआ है, ठीक है। आगे चलें। अब ये जो लिखा हुआ है अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक डिपॉजिट्स 35,170, इसकी एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक टू रिसीवेबल, क्योंकि मैं वो डिसऑनर्ड चेक को रिसीवेबल दोबारा स्टैंड कर चुका हूं, लिहाजा मुझे इसकी एंट्री क्या कर देनी चाहिए? अमाउंट्स क्रेडिटेड बाय द बैंक। ये अमाउंट क्रेडिट हुए हैं, ये बाय कस्टमर नहीं है, डिपॉजिटेड बाय कस्टमर नहीं है। अब इसके अंदर जो है वो कैश भी शामिल हो सकता है, इसके अंदर चेक भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। सो इसको अभी ट्रांजैक्शन को रहने दें ता वक्त कि मुझे कोई कैश की सूरत हाल समझ नहीं आती। आगे चलेंगे। अच्छा, ये जो है अब ये अकाउंट जो है इसको रीबैलेंस कर लें, या अब इसका बैलेंस 993 नहीं रहा, कितना हो गया है? 993 में से 40 और माइनस कर देंगे। हाँ, इसका अब 953 बैलेंस हो गया। हम जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे तो ये 953 लिखेंगे, ठीक है। ओके, आगे चलो जी जरा। अब क्वेश्चन में से पीछे जाएं, क्वेश्चन में से इसका काम भी खत्म हो गया, मास हुआ इसके कि हमने इसकी एंट्री करनी है और हमने ये क्लोजिंग बैलेंस ये लेना है। अभी बहरहाल इसका काम इस हद तक रहता है, मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। आगे चलें। ट्रेडिंग रिसीट कंसिस्ट पार्टली ऑफ कैश एंड पार्टली ऑफ चेक्स, यानी कस्टमर जो हैं वो हमें चेक भी देते हैं और कैश भी देते हैं। ओके, ड्यूरिंग द ईयर उमर पेड आउट ऑफ हिज कैश टेकिंग वेजेस, कैश में से ये पेमेंट्स हुई हैं। अब वो कैश कितना है अभी नहीं पता, लेकिन पेमेंट्स का पता है, लिहाजा हम वो पेमेंट्स लिखना शुरू करते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, नहीं हमने एडजस्ट कर दी, आगे चलेंगे। हाँ, अच्छा। अब यहां पर हम कैश का अकाउंट बनाने लगे हैं, ठीक है। तो पहला वेजेस पे की हैं कैश में से, वो कितनी है? 2950। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, लिहाजा कैश क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट। चलें जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ये वेजेस
ओके आगे चलें। अच्छा जी, एंड सन्ड्री एक्सपेंडिचर 140। सन्ड्री एक्सपेंडिचर जनरल एक्सपेंसेस को कहते हैं, सन्ड्री में जनरल एक ही बात है। 140 के वो पे किए हैं, तो 140 सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश क्रेडिट और ये जनरल एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ बैंक से पे हुए हैं और कुछ ये कैश से पे हुए हैं। चलें जी, उसके बाद he retained 3,000 a week and maintained a balance of 20,000 in till for change। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ना, he retained, उसने 3,000 पर वीक रिटेन कर लिया, यानी ड्राइंग है ये। 3,000 या 1000 में राउंड करना है तो 3 कर लें, तो 52 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 156। चलें जी, ये ड्राइंग की हम एंट्री करते हैं, ड्राइंग टू कैश 156। ड्राइंग का मैंने अकाउंट बनाया है, ये आ गया ये कैश, ठीक है, ड्राइंग्स टू कैश। आगे चलेंगे। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद लिखता है एंड मेंटेन्ड अ बैलेंस ऑफ ₹20 इन द टिल फॉर चेंज, और उसने 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस रखा, ठीक है। तो ये जो कैश अकाउंट निकालें, यानी टिल के अंदर, टिल का मतलब होता है गल्ला, कैश बॉक्स जो दुकान के अंदर होता है, उसके अंदर उसने 20,000 रखे, ठीक है, उसके अंदर उसने क्या किए, 20,000 रखे। अब इस सेंटेंस से ये वाजे नहीं है कि ये उसकी पॉलिसी है, पॉलिसी होगी तो ओपनिंग में भी इतना ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उसने ओपनिंग में भी 20 लिया हुआ है कैश अकाउंट के अंदर। लिया हुआ है तो फिर उसे लिखना चाहिए था, जरा दिखाओ, जरा सेंटेंस निकालो। फिर उसे ऐसे लिखना चाहिए था, ही हैज ए पॉलिसी टू रिटेन 3,000 अ वीक फॉर पर्सनल यूज एंड टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 20। बहरहाल यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो आपने ये ज्यूम कर देना है कि ये 20,000 ओपनिंग में भी अवेलेबल है उसके पास, वो टिल में इतने पैसे रखता है, ठीक है। होता है अगर आप का इत्तेफाक हो या आप में से किसी के घर में कोई बंदा इस तरह बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो शाम को अपना गल्ला खाली नहीं करके आते, उसके अंदर 5 रुपए 10 रुपए, बिकॉज आई यूज टू बी अ शॉपकीपर फॉर सम टाइम, मे बी ये कुछ लोगों के लिए इंकशाफ हो। आई हैव रन अ स्मॉल जनरल स्टोर फॉर लाइक अ ईयर और सो, ठीक है। तो आई डू हैव एक्सपीरियंस कि व्हेन एट नाइट, जब मैं कैश क्लोज किया करता था, तो ये उन दिनों की बात है व्हेन आफ्टर एफएससी आई वाज वेरी मच disheartened not having marks up to my expectation. Then I started a small shop near to my house, and with some stock or all that, and I ran through it for a year or so, and uh, I have an experience for running this kind of shop. And at night when we closed the shop, uh, we left some of the cash in the till. उसके दो कॉन्सेप्ट होते थे, एक तो जो दुकानदार लोग हमें बताते थे कि जी गले में बरकत रहती है, गला खाली नहीं होना चाहिए, और दूसरा ऑब्वियसली ये वाला कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ों वाला था कि जी सुबह जब आएंगे तो कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज वेंज होना चाहिए ना, कोई बंदा आपके पास 100 का नोट ले आता है तो उसको क्या देंगे, तो वो जो स्मॉल नोट्स होते थे वो आमतौर पर गले में छोड़ दिए जाते थे।
تو anyway, تو یہ ایز اے پالیسی ہی یہ عام طور پر لیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو اوپننگ میں بھی اس 20,000 کو لے لیں گے. نہیں لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اوپننگ کیپٹل چینج ہو جائے گا، اس سے کیا فرق پڑنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یہ ایز اے پالیسی یہ رکھنا ہوتا ہے. چلو جی، اوپننگ میں بھی لیں جی 20,000 لکھیں ہم، یہ آ گیا اوپننگ بیلنس بھی 20,000 ہے. یعنی اس کی پریکٹس ہے کہ وہ 3,000 ڈرائنگ لیتا ہے اور 20,000 وہ کلوز مطلب کلوزنگ پہ ٹل میں وہ رکھتا ہے. یہ ڈیلی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے 31 دسمبر والی ڈیٹ کو بھی ایسے ہی ہوگا. چلو جی آگے ایک سینٹینس اور نیچے لکھا ہوا، the balance of his taking together with the checks amounted rupees 250,000 which he had cash out of his taking for the convenience of certain friends was paid into the bank. Okay. کہتا ہے جی اس کے پاس جو پیسے آئے together with the check amounted rupees 250,000، وہ جو اس کے پاس پیسے بچے کیش میں وہ، اور together with the checks amounted to rupees 250,000، اور 2 لاکھ روپے کے وہ چیک جو اس نے کیش کروا لیے تھے، جو کسٹمرز نے دیے، سم ٹائم کیش کے چیک دے دیتے ہیں سیلف کے، کراس نہیں ہوتے، وہ میں نے کیش کروا لیے فار دی کنوینئنس آف سرٹن فرینڈس، ان کے بھی جب پیسے آ گئے واز پیڈ انٹو دا بینک، تو ہم نے وہ پیسے بینک میں جمع کرا دیے. دو باتیں ہو رہی ہیں، ایک وہ کہتا ہے جو بچا ہوا کیش تھا وہ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا، اس بات کو کلوز کر دیں. دوسرا کہتا ہے 2.5 لاکھ روپے کے چیک تھے جن کا آپ نے کیش لے لیا اور اپنے دوستوں کو دے دیا، اور دوستوں سے وہ جب وہ پیسے آئے وہ بھی آپ نے بینک میں جمع کرا دیے. سمجھ آئی بات کی؟ تو 2 ایونٹ ہوئے ہیں، 3 ایونٹ ہوئے ہیں. ایک کسٹمر سے وہ چیک آئے ہیں، دوسرا ایونٹ ہم نے وہ کیش کروائے ہیں، کسٹمر سے چیک آئے اور ہم نے کیش کروائے. دوسرا ایونٹ ہم نے وہ کیش فرینڈ کو لون دے دیا. تیسرا ایونٹ وہ لون واپس آ گیا. چوتھا ایونٹ ہم نے وہ پیسے بینک میں ڈال دیے. ٹھیک ہوا؟ تو ہم پہلے انٹری کرتے ہیں اس چیک کی جو کسٹمر نے ہمیں دیا. فرض کریں یہ ایک چیک ہے، ویسے وہ کہہ رہا زیادہ چیک ہیں آپ اسے ایک انٹری کر لیں. تو ہم کیا کریں گے، پہلی انٹری کیا کریں گے، اور وہ میں نے اس کا کیش نکلوا لیا بینک سے جا کے. پہلی انٹری ہوئی کیش ٹو ریسیویبل. چلیں جی، اوکے. پہلی انٹری ہوئی کیش ٹو ریسیویبل. بھائی کیش اکاؤنٹ، ریسیویبل اکاؤنٹ، کیش ڈیبٹ اور ریسیویبل کریڈٹ. یہ کیا ہوا، میرے دوستوں نے مجھے چیک دیے، سوری میرے کسٹمر نے مجھے چیک دیے، وہ میں نے کیش کروا لیا. ٹھیک ہے، یہ جو بلو انٹریز کر رہا ہوں یہ ساری اسی معاملے کی انٹریز ہیں. پہلا ایونٹ یہ ہو گیا. دوسرا ایونٹ میں نے یہ کیش اپنے دوست کو لون دے دیا. توجہ رکھیں ذرا میری طرف. لون دیا تو میں نے کیا کیا، میں اس کا کلر بدل دیتا ہوں. پھر یہ دیکھیں، جب میں نے ادھر کرو یار اس کو، یہ بار بار ادھر کیوں آ جاتا ہے. جب میں نے لون دیا تو میرا کیش کم ہو گیا اور لون ٹو فرینڈ جو تھا وہ ڈیبٹ ہو گیا، ریسیویبل ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں لون ٹو فرینڈ کا. ٹھیک ہے، یہاں بنا دیتا ہوں لون ٹو فرینڈ. فار کنوینئنس کا مطلب ہوتا ہے اسے ضرورت تھی تو اس کی سہولت کے لیے. تو 250 یہ کیش سے ہم نے پیسے اسے دے دیے. ٹھیک ہے، اب یہ پیسے دوست سے واپس آئے. یہ کیسے پتا چلا؟ اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو پیسے بینک میں جمع کروائے ان میں یہ والے پیسے بھی شامل تھے. جب یہ پیسے واپس آئے تو ہم انٹری کیا کر رہے ہیں بھائی، ہم انٹری یہ کر رہے ہیں جب یہ پیسے واپس آئے تو ہمارا کیش ہمارے پاس واپس آ گیا 250 اور یہ لون ٹو فرینڈ. ٹھیک ہے، نکالو جی ادھر. یہ رہا لون ٹو فرینڈ اکاؤنٹ نل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، فرینڈ صاحب فارغ ہو گئے.
हमारा कैश हमारे पास वापस आ गया जो कस्टमर्स ने दिया हुआ था। अब चलो उधर जरा, अब जब मैं यहां पर एक बैलेंसिंग फिगर निकालता हूं इस जगह पर जो कि बैंक में जमा हुई है, तो उसमें ये वाली फिगर भी शामिल है। ठीक है, यहां पर कुछ पैसे बैंक में जमा कराए गए हैं, यहां पर एंट्री हुई है बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। और ये पैसे कितने हैं? जितने बैंक में जमा हुए हैं, जितने बैंक में जमा हुए हैं निकालो जी जरा। ये वाला 35,150। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया और कैश अमाउंट्स क्रेडिटेड बाय बैंक, ये बैंक ने हमें क्रेडिट की हुई है। लेकिन ख्याल रहे कि बैंक हमें क्रेडिट जो हम कैश जमा कराते हैं वो भी करता है, और जो कस्टमर चेक देते हैं वो भी बैंक क्रेडिट ही करता है। ठीक है, तो अब ये इंश्योर करना है कि ये सारा कैश है या ये इसमें से कुछ कस्टमर के दिए हुए चेक डिपॉजिट हुए हैं और कुछ हमारा कैश डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए इसमें प्रॉफिट का कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन के स्टार्ट में बाज का दिया हुआ होता है, पीछे जाएं। नहीं दिया हुआ, ठीक है, आगे जाएं। अच्छा कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ये मैंने बहरहाल इस एंट्री का मैंने ट्रीटमेंट सारे का सारा कर लिया। द बैलेंस ऑफ इज टेकिंग टुगेदर विद चेक्स अमाउंटेड ₹250,000 which he had cashed out of taking for convenience of certain friends। इससे तो यही लग रहा है कि ये जो पैसे जमा हुए हैं ये पहले कैश में आए और फिर ये जमा हुए हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम उसकी एंट्री कर देते हैं। ठीक है, निकालो जी, ये जो 35 समथिंग है उसकी हम एंट्री करने लगे हैं। कितना था वो? 35,170। ये क्या हुआ? कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। ठीक है, बैंक वहां डेबिट हुआ है। ठीक है, अब इस जगह पर जो फिगर निकलेगी, यहां पर ये जो फिगर निकलेगी ये क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आप कह लें। ठीक है, 37,916। और पैसे हमें कहां से आने हैं? रिसीवेबल से ही आने हैं, 37,916। ठीक है जी, ये कैश डेबिट हुआ और रिसीवेबल क्रेडिट हुए, 37,916 ये कैश। ठीक है, अब मेरा ख्याल है हमारा मसला हल हो जाएगा। मसला कैसे हल होगा? जब हम ये एंट्रीज करेंगे यहां पर, ये देखें, जब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगा तो यहां जो फिगर निकलेगी वो सेल्स निकल आएगी। ठीक है, यहां जो फिगर निकलेगी ये भी मुकम्मल हो चुका हुआ है, वो परचेजेस निकल आएंगे। ठीक है, यहां पर मैं कॉस्ट ऑफ सेल मैंने इन्वेंट्री ये बनाया हुआ है, ये परचेजेस निकालें जी कितनी आती हैं, सेल निकालें कितनी आती हैं, इसका आपने टोटल लगा लेना। $30,900 सेल परचेजेस, ये आ गई 30,940। ठीक, हाँ जी 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 हाँ जी, हम दोनों डिस्काउंट छोड़ गए हैं, ये आखिरी एंट्री हमने की ही नहीं है। डिस्काउंट रिसीव जो है वो 480 है, चलें जी रिकॉर्ड करें 480। ये इधर रिकॉर्ड होना, तो भाई बैलेंस करने से पहले बताओ ना। ये डिस्काउंट
सॉरी 480 इधर आना है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका रेजर कहाँ है यार? हाँ जी, अब निकालेंगे परचेजेस कितनी आ रही हैं। ओहो, तो शीट इधर जाई जा रही है। हाँ जी, अब निकालेंगे परचेजेस कितनी आ रही हैं। $31,420। ओके, इधर लिखेंगे 31,420, ये परचेजेस आ गई। इसी तरह डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। वो रिकॉर्ड करते हैं नहीं हम डिस्काउंट अलाउड को, वो कितना है 520। उसकी एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रिसीवेबल, ठीक है। अब ये सेल्स कितने निकलेंगे जी, ये निकाल लें जरा। हैं, कहाँ एरर हो गया, वो कर लेते हैं यार, गलत है ये। एक मिनट ठहर दो यार, कोई बात नहीं, अब मुझे करने दो, एक मिनट रुक जाओ। ये अरेज ही नहीं कर रहा, अब शीट दूसरी पे चले गए ना। ये फिगर हमसे गलत हो गई है जी, चलें जी सही लिखवाएं आप। चलो आप फिगर बोलो सही क्या है यार, ये इधर क्यों चली जाती है। हाँ जी, कितनी फिगर है, 38,166, ये फिगर इतनी आती है जी, सॉरी जी। अच्छा, अब सेल निकालें कितनी निकलती है। ये टोटल लगाएं, ये टोटल लगाएं जैसे ये लगाए थे और ये फिगर निकाली थी 45,000 39, ओके 39,156 है, ये 200 नहीं है, ये क्या है 156 है, ठीक है जी। सेल्स भी निकल आई। अब हमारे पास जो अकाउंट बैलेंस होने वाले उनको बैलेंस कर लें, मेरा ख्याल सारे मामला सॉल्व हो गए हुए हैं। यहाँ जब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ये टोटल लगाएंगे तो ये कंप्रीहेंसिव की फिगर निकल आएगी, ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास इसका टोटल लगाएंगे हम यहाँ पर, तो ये क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा और ये कंप्रीहेंसिव की फिगर निकल आएगी। कितनी बनेगी, 30,120, ये हमारे पास आ गई इसकी कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर, ठीक है जी। और ये हमारे पास इसका आ गया क्लोजिंग बैलेंस जी। जनरल एक्सपेंसेस ये टोटल लगे और ये कितना आ गया 890। इसी तरह ये रेट्स का ये क्लोजिंग बैलेंस जाना मेरी बैलेंस शीट में और यहाँ कंप्रीहेंसिव की फिगर निकलनी है 465, ठीक है जी। और ये मेरे पास पहले ही फिगर ट्रेड पेएबल की आ गई हुई है, उसके बाद ये रिसीवेबल की फिगर मेरे पास आ गई हुई है। इसी तरह ये फिक्सचर को हम बैलेंस करेंगे, इसमें शामिल हो चुके हैं क्लोजिंग बैलेंस ये हैं, तो अगर यहाँ को डिफरेंस आता है तो वो क्या है, दैट इज डेप्रिसिएशन 350, ठीक है जी, ये हम इधर लिख लेंगे। अच्छा, मैं गलती कर रहा हूँ, गलती क्या कर रहा हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों के मैंने अकाउंट नहीं बनाए उन्हें मुझे डायरेक्ट वहाँ लिखना है, जैसे ये डेप्रिसिएशन है,
تو یہ ساتھ ساتھ کام کرنا ہے. غلطی کیا کر رہے ہیں, نہ میں نے ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ادھر لکھا, نہ میں نے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ادھر لکھا. ادھر ایک سنگل افیکٹ دے دیا, فوراً ادھر چلیں ورنہ آؤٹ ہو جائے گا کام. یہاں پر لکھیں گے ڈسکاؤنٹ الاؤڈ کتنا تھا 520, اور ادر انکم بنایا نہیں کچھ. چلو ادھر ادر انکم آئے گا ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ 480. ٹھیک ہو گیا جی, چلیں. اچھا جی آگے چلیں جی. اور یہ ڈیپریسیشن بھی لکھ لیں 350 کی 350. ٹھیک ہو گیا. چلو جی اب چلو دوبارہ اکاؤنٹس پہ چلے جاؤ, بیلنس کریں ان کو. یہ سب بیلنس ہو گئے, اس کی بیلنسنگ کی میں نے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کمپریہنسو میں جو فگر جانی ادھر آ گئی کتنی آئی جی, ایک یہ جائے گی بیلنس اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن میں, اور یہ 200 یہ آ گئی. اسی طرح یہ انٹرسٹ کی یہ آگئی پیبل کی فگر, اور 120 جائے گی کمپریہنسو میں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ڈرائنگ کی فگر آ گئی. ٹھیک ہے جی, یہ جائے گی کمپریہنسو, سوری کلوزنگ بیلنس ہے یہ کتنا 1056. لو جی یہ ہو گیا جی کام مکمل. چلیں جی. اچھا وہ جو ایک سینٹینس وہاں لکھا ہوا ہے اس پہ جائیں ذرا. یہ جو لکھا ہوا ہے کہ ٹریڈنگ سیز کنسسٹڈ پارٹلی آف کیش اینڈ پارٹلی آف چیکس. ٹھیک ہے, اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ ہمیں چیک دیتے ہیں. اب جو چیک دیتے ہیں وہ سیلف کے چیک بھی ہو سکتے ہیں اور کراس بھی ہو سکتے ہیں. کراس چیک ہوگا تو انٹری ہوتی ڈائریکٹ بینک میں. اب بینک میں چاہے وہ سیلف کے چیک ہیں, چاہے کیش کے چیک ہیں, چاہے کیش ہے وہ جمع ہوئے ہیں, اس سے میرے ریسیویبل کی فگر کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے وہ ہمیں اسے علیحدہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ آئیے. شاید کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہو کہ یار چیک علیحدہ پتہ چلنے چاہیے, کیش ایسے اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی وہ اگر چیک بھی آئے ہیں تو وہ ریسیویبل سے آئے ہیں, اور کیش بھی آیا تو ریسیویبل سے آیا. لہذا ہم نے وہ بیلنسنگ فگر جو تھی جو جمع ہوئی ہے وہ ہم نے ادھر بینک میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے, چلو جی اب نکالو یہ اکاؤنٹ, ذرا ان کو بیلنس کریں. ٹھیک ہے, لاؤ جی ذرا ان کو لکھنا شروع کر دیں ہم. کیش کا بیلنس ہے جی 20 اور سٹاک ہے 5800. لکھیں ان دونوں کو پہلے. یہ ہے جی انوینٹری 5800 اور کیش 20. ٹھیک ہے, نیکسٹ. اچھا جی, یہ جو بیلنس تھا یہ میں نے ادھر لکھ دیا, یہ لکھ دیا. کاسٹ آف سیل میں جائے گا 30,120. چلو جی ادھر بھی لے جائیں 30,120. سیل کتنی ہے جی وہ بھی یہاں سے پکڑ لیں, یہ میں نے لکھ دیا, یہ بھی لکھ دیا 39,156, اور 3,000 کا ریسیویبل ہے. یہ آ گیا جی 39,156. یہ کتنا ہوا جی 630 9,036. چلو جی گراس پروفٹ نکل آیا. اور انوینٹری نہیں, وہ کیا تھا ریسیویبل. یہ ریسیویبل ہے ہمارا 3,000 کا. آگے چلو جی. اچھا جی, فکسچر 2550 WDV کے اوپر یہ لکھ دیتے ہیں ادھر. یہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ فکسچر ایٹ WDV, یہ 2550 ہو گیا. چلو جی. اس کے بعد جنرل ایکسپینسز, یہ پیبل ہیں 190 اور ایکسپینس ہے 890. یہ لکھ دیتے ہیں, یہ 890 جنرل ایکسپینسز, اور پیبل کتنا تھا, یہاں ٹریڈ پیبل لکھیں گے پہلے, پھر جنرل ایکسپینسز پیبل 190. چلو جی. اس کے بعد
रेट्स ये प्री पेड हैं और ये एक्सपेंस है 465। चलो जी, ये रेट्स 465 और प्री पेड कितने हैं? प्री पेड रेट्स 50। नेक्स्ट आगे चलो। उसके बाद आ गया जी पेएबल। परचेज मैं उधर ले गया हूँ, पेएबल हैं सिर्फ 2200 के, ये लिख देते हैं उधर। चलें 2200 के, ये आगे पेएबल। नेक्स्ट लाइट एंड हीट, ये 70 के पेएबल हैं और 200 एक्सपेंस है, लिख देते हैं। लाइट एंड हीट 200 और 70 के पेएबल हैं। लाइट एंड हीट पेएबल कितने हैं? 70 के, ये लीजिए। नेक्स्ट लोन का इंटरेस्ट पेएबल है 30 और एक्सपेंस है 120। लोन इंटरेस्ट यही लिख दें, इसने यही लिखा हुआ, ज़्यादा लिखा हुआ। साथ ही लिखा हुआ है ना, एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है। ओके, और पेएबल है इंटरेस्ट पेएबल। प्रेजेंटेशन वाला तो काम ही खत्म हो गया ना, ना इंट्रो में फाइनल अकाउंट है ना इधर फाइनल अकाउंट। हाँ जी आगे चलो। उसके बाद ड्राइंग है जी 1056 की। चलें जी, ड्राइंग इधर से लेस होनी है, यहाँ ओपनिंग आएगा, यहाँ ड्राइंग्स माइनस हो जाएंगे। कितने? 1056, ये माइनस होंगे। ठीक है जी, अब हमने कुछ ब्लॉक बनाने हैं, वो बना देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। हाँ जी, यहाँ पर एक बैलेंस रह गया हमारा, बैंक कोड ही है, बैंक ओवर ड्राफ्ट है ना, हैं हैं? अच्छा, ये आ गया बैंक बैलेंस। हाँ वो 900, हाँ वो 900 कितना है? 40 है, 953 है, क्या है? 953 है, हाँ ठीक है जी। ये ब्लॉक बन जाएगा, ये बन जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो क्वेश्चन के अंदर छुपी हुई होती है, ठीक है। वो जो हमने एक फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, वो लोन फ्रॉम बोरो, जो भी उसका नाम है, 4000 का, वो क्या है? वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि वो कई सालों से आ रहा है, ये उसने बताया। इस साल वो पे नहीं हुआ, पे होता तो या कैश से होता या बैंक से होता, वो दोनों हम डील कर चुके हैं। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगले साल भी पे नहीं होगा, कंसिडरिंग इस लॉन्ग टर्म नेचर के काफी सालों से आ रहा है, ठीक है, नीचे लिख देंगे ये वाली बात। ओके ले जनाब, एक ब्लॉक ये बन गया, ये यहां टोटल लग जाएगा और ये यहां टोटल लग जाएगा। करो जी, करंट एसेट का टोटल कितना है, और इधर से एक ब्लॉक ये बन गया। हाँ जी, एक्सपेंसिस ब्लॉक का टोटल बनाओ कितना है? 5695, दिस प्लस दिस, ठीक है जी, और माइनस दिस, ये आ गया नेट प्रॉफिट 3821। इधर आ गया नेट प्रॉफिट 3821, ठीक है। अच्छा जी, 3821। अब मुझे बताओ कि इसका ओपनिंग कैपिटल कितना। चलो बहरहाल हम बैलेंसिंग करके बाद में वेरीफाई कर लेते हैं। ये करंट एसेट का टोटल कितना आ गया? 9823 दिस प्लस दिस, ये कितना आ गया? 12373। ये टोटल इधर आना है 12373। अच्छा जी, ये करंट एसेट का टोटल लगाओ, 2200 जमा 290,
2490 और 12,373 में से 2490 माइनस करो, 4000 माइनस करो, बाकी ये इक्विटी ब्लॉक का टोटल आना चाहिए 5883। ओके, अब इसको और इसको और इसको हमने जमा किया तो ये आ गया। यहाँ कैपिटल नहीं वर्डिंग आपने लिखनी, यहाँ भी कैपिटल नहीं लिखनी, यहाँ आपने इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखनी है। इधर भी इक्विटी लिखना है, मैं रोज इक्विटी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, एंड लायबिलिटीज। ओके, इधर ऊपर भी एक हेडिंग एसेट्स का देना है, ओवरऑल एसेट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये वेरिफिकेशन मारनी है हमने। अब 5883 माइनस दिस प्लस दिस, ये कितना आ गया ओपनिंग कैपिटल? ये जो जी 3118। अब ये वेरीफाई कर लें, निकालें जी जरा अपने अकाउंट निकालें जरा, ये जो बनाए हुए हैं हमने। ओपनिंग एसेट जमा कर लें, ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस कर दें। करें जी जमा 20 जमा 4500 जमा 2800 जमा फिर 2800 माइनस 240 जमा 40 माइनस 1800। अगले पेज पे जाएं, माइनस 80 माइनस 30 और एक अकाउंट बुक पे बना हुआ है ओवरड्राफ्ट का, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। विड्रॉल साइड पर आ रहा है ना, माइनस 892। ओहो, यहां हम एक गलती करके गए हैं। एक मिनट, एक गलती कर गए हैं। गलती क्या की है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये भी बैंक वाला ओपनिंग बैलेंस लिया हुआ है। जब मैंने वो अनप्रेजेंटेड चेक इसमें से निकाल दिए हैं तो वो इधर ऐड हो जाने चाहिए थे, वो पिछले महीने की पेमेंट कंसिडर होनी चाहिए, ठीक है। जब वो पिछले महीने की पेमेंट कंसिडर होगी, मैंने यहां से निकाल दी है पेमेंट से, तो वो पेमेंट कहीं तो रिकॉर्ड होनी है ना। तो बैंक ने तो पिछले महीने नहीं पे किए, बैंक ने इस महीने पे किए थे, तो मैंने यहां से उन्हें निकाल दिया, क्योंकि मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा था कैश बुक में। तो अब जब मैंने कैश बुक पिछले महीने एंट्री की हुई थी और मेरा पिछले महीने का जो बैलेंस था बैंक का इतना था, मेरा इससे ज्यादा था ओवरड्राफ्ट, क्योंकि मैंने वो अनप्रेजेंटेड चेक लोगों को दिया हुआ था। तो लिहाजा मेरा ओपनिंग भी चेंज होना था। जब हमने ये 280 यहां से माइनस किया तो 280 892 में ऐड होना था। कितना आया जी? 1172। ये ओपनिंग ओडी चेंज हो गया और ये क्लोजिंग भी चेंज हो गया। अब क्लोजिंग भी चेंज करो, ओपनिंग भी चेंज करो। ये देखें ना, छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इग्नोर कर जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। समझ आइए मेरी बात कि हमने तो इस 280 को हमने नहीं, बैंक की, ये बैंक का समरी है, बैंक के फिगर है, बैंक ने इसे यहां पेमेंट डाला, सही डाला, क्योंकि बैंक ने तो इसी महीने पे किया। लेकिन हम कैश बुक में अनप्रेजेंटेड चेक को उस महीने पेमेंट कंसिडर करते हैं जिस महीने हम चेक दे देते हैं। तो हम जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो कैश बुक के मुताबिक बनाते हैं, ना कि बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बनाते हैं, ठीक है। तो चूंकि मैंने पिछले महीने इनको चेक दे दिए थे, लिहाजा अल्टीमेटली ये जब मैंने चेक दिए तो मैंने पेबल भी ओपनिंग कम कर दिए। तो जब ओपनिंग पेबल कम कर दिए तो बैंक पेमेंट रिकॉर्ड हुई, बैंक पेमेंट रिकॉर्ड हुई तो मेरी बुक्स में ये ओडी इतना नहीं है बल्कि इतना है, जितने मेरे चेक थे उससे ज्यादा है 1172। तो क्लोजिंग कितना हो गया यार फिर? 673। ये आ गया क्लोजिंग। ये बस मुझे ये दोनों बैलेंस चेंज करने हैं जी। ये मुझे कहां से पता चलेगा? ये जब मैंने कैपिटल निकालूंगा, अभी मेरे ध्यान में क्लिक कर गया, लेकिन आप कैपिटल भी निकालते तो वो उससे टैली नहीं होना था। हाँ, वो टैली इसलिए हो जाना था कि हमने ये वाला बैलेंस जो है ये भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली निकालो जी जरा, आप 673 इधर लिखो, 673 क्लोजिंग बैलेंस, ये वाला बैंक का बैलेंस है।
ये चेंज होगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। चलें जी, आप कितना है यार बैलेंस बताएं मुझे, जल्दी करें शाबाश। 9,543। अब ये जमा कर दें इसको और इसको, 12,093। कैपिटल चेंज हो गया है। ओके, 12,093 में से ये 2,490 के करंट एसेट माइनस करें, 4,000 के ये नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करें, सॉरी करंट एसेट कह रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज 5603। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस होना था, ये अब ऐड हुआ है, ये माइनस कर दें, ये ऐड कर दें, 2838 ये ले। ठीक है, अब आपका कैपिटल इतना होना चाहिए। जो मैं बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि आपका कैपिटल उतना नहीं आना। हाँ, अब इसको आप कैपिटल चेक कर लिया आपने, इतना ही आ रहा है, ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी अब इतना आएगा। ठीक है, अब आप ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो ये आपका कैपिटल आ जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर में रिक्वायरमेंट हो कि ओपनिंग कैपिटल की एक सेपरेट रिक्वायरमेंट हो तो वो बकायदा वर्किंग करनी, सारे ओपनिंग एसेट लिख के सारी ओपनिंग लायबिलिटीज माइनस करनी। नहीं जी, इस तरह से हर चीज को, छोटी छोटी चीज को मद्देनजर रख के ये चीजें चलेंगी। अगर थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा जी, आपने क्वेश्चन घर से करके आना है, दानिश वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा है? 17। हाँ, आप एक तो क्वेश्चन नंबर 17 निकालो जी जरा, किधर है वो क्वेश्चन? ये बहुत आसान सवाल है, आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अकल चाहिए इसके अंदर, ख्याल रखिएगा ज़रा। ठीक है, तो ये आप अटेम्प्ट करके आएंगे दानिश वाला क्वेश्चन, और साथ आप लोग एमसीक्यूज जो हैं वो टोटल कितने हैं? 34 हैं जी। तो वो पहले 14 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 14 एमसीक्यूज। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम इसको परसों ख़त्म कर दें इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, थैंक यू।